Hello students, good morning all of you. How are you? Welcome again to your online science class. Dear students, as you all know, we are learning lesson 6. Lesson 6 is rocks and minerals. So in this lesson, I told you 3 types of rocks. Yes, how many types of rocks? 3 types of rocks. First is igneous rocks, second is sedimentary rocks, and third is metamorphic rocks. So we learned in the previous class about these rocks and their examples also. So students, today we are going to learn about the minerals. So what are minerals? So students, minerals minerals. So all rocks are made up of minerals. Rocks are made up of minerals. So all rocks are किससे बनी होती है सभी चट्टानें? मेड अप ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स होता है खनिज पदार्थ जो होते हैं उनसे बनी होती है. किससे बनी होती है सभी चट्टानें? खनिज पदार्थों से बनी होती है. तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस are chemical substance. Minerals are chemical substance that occur naturally. जो कि कैसे पाए जाते हैं? कैसे मौजूद होते हैं? That occur naturally means प्राकृतिक. That occur naturally on the earth. अर्थ पर कैसे पाए जाते हैं? Naturally पाए जाते हैं. Okay, what are minerals? You know, minerals are chemical substance. जो क्या होते हैं? रासायनिक substance होते हैं, पदार्थ होते हैं जो कि किससे पाए जाते हैं? Naturally पाए जाते हैं on the earth. अर्थ पर naturally means प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं. इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. ये मिनरल्स होता है वो पाया जाता है. सो मिनरल्स कैन बी मेटामोलिक एंड नॉन मेटामोलिक. तो मिनरल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के. मिनरल्स आर 2 टाइप्स. फर्स्ट इज मेटालिक मीन्स धात्विक, एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटालिक अधात्विक. Okay, metallic and non-metallic. Now, gold, silver, iron, aluminium, and copper are some metallic minerals. Metallic minerals is gold, iron, silver, yes, and copper, aluminium, copper. Aluminium. These are some examples of metallic minerals. Metallic minerals are used for making jewelry, vehicles, utensils, wire, etc. इनका यूजेस किसके लिए किया जाता है? इसका यूजेस किया जाता है मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं उनका यूजेस किस लिए किया जाता है? आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए. यस, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए, व्हीकल्स यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए, एंड वायर्स बनाने के लिए, यस, एक्सेट्रा. Okay, so these are the uses of metamorphic minerals. Now next is non-metamorphic minerals. So students, this is about the metamorphic minerals. ये क्या होते हैं? सब मिनरल्स के नाम मैंने बताया जो कि मेटामोलिक होते हैं. गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. ओके, एंड यूजेस ऑफ मेटामोलिक minerals is making for jewelry, utensils, and vehicles and wires. Okay, so now next is non-metamorphic minerals. Next is non-metallic. Yes,
नॉन मेटालिक मिनरल्स, कैल्साइट, जिप्सम, कैल्साइट, जिप्सम, जिप्सम, फेल्सपार, यस, कैल्साइट, जिप्सम, फेल्सपार, mica and coal and petroleum are petroleum are example of some examples of non-metallic minerals. Okay, so students, coal and petroleum are valuable natural resources. coal और petroleum जो होते हैं ये क्या होते हैं? valuable natural resources होते हैं. valuable natural resources होते हैं. Okay, ये क्या होते हैं? valuable natural resources होते हैं. they are dug out of the earth from mines and wells. ये कहाँ से निकाले जाते हैं? they are dug out of the earth से निकाला जाता है from mine. mine means खान. खान जो होती है, खान and wells means कुएं. कुएं और खानों से इन्हें निकाला जाता है. ओके, ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इन्हें कुएं और खानों से निकाला जाता है. एंड सो फर्स्टली वी नो अबाउट द कॉल. ओके, let us learn about the non-metallic minerals. First is coal. Coal and petroleum are valuable natural resources. So only coal and petroleum, about the coal and petroleum we will learn. First is coal. Coal is kind of sedimentary rocks. coal जो होता है, कोयला जो होता है वो किसका है? sedimentary rocks का kind है. sedimentary rocks, kind of sedimentary rocks. ओके स्टूडेंट्स, सो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो कैसे बना था ये? बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द अर्थ वाज कवर्ड विद थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट. जो हमारी अर्थ थी जो वो कैसी थी? बहुत मोटी दलदली फॉरेस्ट से कवर्ड थी. ओके, और अर्थ इज कवर्ड विद थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट. मीन्स क्या था कि मोटी दलदली जंगल से कवर्ड था हमारा अर्थ. When plants died, जब plants died हुए, they fell into the swamp and got buried down. क्या हुआ? ये दलदल में गिर गए and got buried down. और क्या हो गया? got buried down और नीचे चले गए. दलदल में जाएंगे तो वो क्या हो गया? नीचे चले गए. Due to high temperature and pressure, these plants get convert into coal. बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या हुआ? ये प्लांट्स कन्वर्ट इनटू कॉल. और ये प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो गए? कॉल में, मीन्स कोयले में कन्वर्ट हो गए. यस, सो कॉल इज यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग. कॉल को किस लिए यूज में लेता है? कॉल इज यूज एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग. ईंधन के रूप में कुकिंग में काम में लिया जाता है इसे. Yes, and for producing electricity, for producing electricity and in steam engine. और किसमें किया जाता है? in steam engine. और steam engine में भी इसको यूज में लिया जाता है. Okay students, so these are uses of coal and how to make coal. Yes, how to plants convert into coal. Understood na? Now next is petroleum. Yes, so this is about the coal. Now next is petroleum, because coal and petroleum valuable natural resources. So now we are going to know about the petroleum. पेट्रोलियम. नाउ पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड, इससे क्या कह सकते हैं हम? क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल.
crude oil means कच्चा तेल, कच्चा तेल कह सकते हैं हम इसे, और क्या क्या कह सकते हैं, रॉक ऑयल और ब्लैक गोल्ड। रॉक ऑयल एंड ब्लैक गोल्ड, काला सोना। यस, इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, रॉक ऑयल और ब्लैक गोल्ड कह सकते हैं हम। इट इज फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड सी एनिमल्स विच गॉट buried अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये कैसे बना, रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स, रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड सी एनिमल्स और डेड प्लांट्स की रिमेनिंग से बनाइए कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ था, ये कहाँ चले गए थे, दे गॉट बरीड अंडर द सी, कहाँ चले गए थे प्लांट्स, वो अंडर द सी में चले गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। उससे क्या हुआ, दे वो जब उसमें सी में चले गए तो उसके बाद किसका फॉर्मेशन हुआ, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। इट इज़ मोस्टली यूज एज ए फ्यूल इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक पेट्रोल। ये मोस्टली किस में यूज किया जाता है, यूज एज ए फ्यूल, फ्यूल के रूप में इसे यूज में लिया जाता है एज ए फ्यूल। इट्स यूज in different form में like petrol, diesel, kerosene and LPG gas, okay, as a fuels like petrol, diesel, petrol, diesel, kerosene, and LPG gas, and LPG gas. LPG. What is the full form of LPG? LPG gas. It is also used for dry clean. LPG की full form है liquefied petroleum gas. Full form of LPG is LPG. Full form is liquefied L means liquefied petroleums, P for petroleum, P for petroleums and G for gas, okay, liquefied petroleum gas. Okay students, understood? LPG full form is liquefied petroleum gas. Okay, so it is also used for dry clean. और जो पेट्रोलियम जो होता है ये किसके लिए यूज में लिया जाता है, ड्राई क्लीन के लिए भी यूज में लिया, यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग। ओके, ड्राई क्लीनिंग के लिए भी पेट्रोलियम जो फ्यूल्स होते हैं वो यूज में लिए जाते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द मिनरल्स, okay, metallic minerals and non-metallic minerals. In the non-metallic, coal and petroleum. Okay, now next topic is uses of rocks and minerals. Okay, now we are going to learn uses of rocks and minerals. So I hope you understood this minerals very well. Now we are going to learn our next topic. Now next topic is uses of rocks and minerals. Uses of rocks and minerals. So rocks और minerals के uses क्या होते हैं? First is rocks and minerals are used as building materials. क्या? Building materials. क्या होता है? Rocks and minerals are used for building materials. ओके, बिल्डिंग मटेरियल्स किसी काम में लिया जाता है, जैसे कि हाउसेस, स्कूल्स, रोड्स, ब्रिज एक्सेट्रा आर मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। लाइक जैसे कि हाउस, स्कूल, रोड,
debris, etc. are made from rocks and minerals. So this is the first use of rocks and minerals. Now next is rocks give us fuel like coal, petrol and uranium. Rocks क्या देता है हमें? Give us rocks give us fuel like petrol, petroleum, coal and uranium. Like coal, petroleum and uranium. Okay. Uranium is a mineral used to produce nuclear energy. यूरेनियम जो होता है वो क्या होता है? एक मिनरल्स होता है, ऐसा ये क्या होता है? एक मिनरल्स होता है, ये प्राकृतिक खनिज पदार्थ होता है जो कि क्या बनाने के लिए यूज में लिया जाता है? यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी, यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी. ये न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज में लिया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट यूज इज रॉक्स गिव अस यूजफुल मेटल्स. Metals like aluminium and iron are used to make utensils. Copper is used to make electric wires. Now next is rocks क्या करता है? हमें क्या देता है? Rocks give us useful metals. Rocks give us यूजफुल मेटल्स. क्या देता है रॉक्स हमें? यूजफुल मेटल्स देता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स. ये दोनों किस लिए यूज में लिए जाते हैं? यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए. आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स. ओके, यूटेंसिल्स बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं. एंड कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर. और कॉपर जो होता है किस लिए यूज में लिया जाता है? इलेक्ट्रिक इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स. इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए यूज में लिया जाता है. ओके स्टूडेंट, this is the third use of rocks and minerals. Now next is number fourth is uses is rocks give us gemstones. rocks क्या देता है हमें? give us stone. gemstone मीन्स क्या होता है? रत्न. रत्न जो होता है डायमंड, रूबी, हीरा. रूबी मीन्स क्या होता है? माणिक. एंड इमर्ल्ड मीन्स रत्न. and sapphire. Sapphire means neelam. Yes, these are name of different types of yes, you are the minerals used as gemstone. जो कि रत्न के, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं जो कि किस लिए यूज में लिए जाते हैं? रत्न के रूप में, गैमस्टोन के रूप में यूज में लिए जाते हैं. जैसे कि गैमस्टोन इज ए डायमंड इज ए हीरा. गिव अस गैमस्टोन, ये हमें क्या देता है? गैमस्टोन देता है, मीन्स रत्न देता है. ओके, ये क्या देता है हमें? रत्न देते हैं. जैसे कि हीरा और पन्ना क्या होता है? इसे मणिक. रूबी मीन्स मणिक, इमर्ल्ड मीन्स पन्ना और सफेद मीन्स नीलम. दीज आर गैमस्टोन. यस, दीज ऑल आर मिनरल्स गिव अस गैमस्टोन, जो कि गैमस्टोन रत्न देते हैं हमें. ओके स्टूडेंट्स,
So student, this is the uses of rocks and minerals. Now I am going to tell you about the coal and petroleum. Coal and petroleum resources are limited. कॉल और पेट्रोलियम का रिवर्सेज जो होता है, जो रिवर्सेज की प्रोसेस होती है वो लिमिटेड है, मीन्स एक सीमित मात्रा में है. सो स्टूडेंट्स, वी शुड यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल वाइजली. हमें इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स होते हैं वो वाइजली यूज़ करना है, मीन्स बहुत अच्छे से तरीके से यूज करना, हमें वेस्ट नहीं करना है. ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल जो होता है उन्हें हमें सेव करना है, उसे हमें वेस्ट नहीं करना है, सेव करना है. तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी कैसे सेव करनी है, आपको अपने रूम में, जब आप रूम में एंटर करते हैं तो अपना स्विच ऑन करना है, रूम से बाहर निकलते वक्त आपको ऑफ करके जाना है. जब ज़रूरत हो तभी आपको स्विच ऑन करना है, अदरवाइज नो नीड टू ऑन द लाइट 24 आवर्स. ओके, जब आपको लाइट की ज़रूरत है तभी आपको ऑन करनी है, तब आपको फ़ैन की ज़रूरत है तो फ़ैन ऑन करना है, अदरवाइज अननेसेसरी स्विच ऑन करके नहीं छोड़ना है. और फ्यूल्स को भी हमें ऐसे यूज करना है, बिल्कुल वाइजली यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है. सो स्टूडेंट्स, योर लेसन 6 is completed. Okay, and in the next class we will learn exercise of lesson 6. Okay students, for the today's class it's enough. Thank you.